Jai Siaram, Chapter Biotechnology, Principle and Processes. Old biotechnology, technique of using techniques of using live organism or enzymes from organism to produce product and processes useful to humans. Okay. Today biotechnology, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing of gene vaccine or correcting a defective gene are, are all part of biotechnology. Okay. According to the European Federation of Biotechnology, EFB, European Federation of Biotechnology, according to the European Federation of Biotechnology, the integration of natural science and organism cells part thereof and molecular analogues for product and services. The integration of natural science and organism, the integration of natural science and organism the integration of natural science and organism cells part thereof and molecular analogues for product and services. The integration of natural science and organism cells part thereof and molecular analogues for product and services. The integration of natural science और organism दोनों को integrate करके बनाया गया cell part thereof and molecular analogues for product and services. Okay. Principles of biotechnology. First, genetic engineering. Principle of biotechnology. First, genetic engineering techniques to alter the chemistry of genetic material. Techniques to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA to produce this into host organism and thus change the phenotype of the host organism. Genetic engineering क्या है? Technique to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA to introduce this into host organism and thus change the phenotype of the host organism. Okay. Bioprocess engineering मेंटेनेंस ऑफ ये जो प्रोसेस के टाइम जो काम हो रहा है, हाँ, तो वही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ये इंजीनियरिंग जो हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस प्रोसेस में जो काम हो रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic animal in large quantities for the manufacture of biotechnological product like antibiotic vaccine enzyme etc. Maintenance of sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotes processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell process to enable the growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological product like antibiotic vaccine enzyme etc. Okay, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permit variation. Yes, traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene. Very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with desired gene. बिल्कुल. The technique of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce. एक सेकेंड फिर से.
the technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome these limitations and allow us to isolate and introduce only one set of introduce only one or a set of desired gene without introducing undesirable gene into the target organism. बिल्कुल जीन क्लोनिंग, जैसे ये इकोलाई हो गया, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है और यहाँ पे ओ आर आई प्रेजेंट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, ओके। फिर ये तो कोई एनिमल सेल है, यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाले, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन डीएनए आइसोलेट किए, फिर उसके बाद कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा, एंड देन ये वेक्टर प्लस ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ दिए, डीएनए लाइगेज की मदद से मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। फिर यहाँ पे ORI प्रेजेंट है और अब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है और अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ओके। इंटर इन होस्ट में इंटर क्या गया, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें क्या इकोलाई क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें डाला गया है, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। फिर अब इकोलाई में इसका बहुत सारा नंबर हो गया, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, इसे कहेंगे जीन क्लोनिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, Stanley Cohen and Herbert Boyd accomplished this in 1972. This in 1972. Stanley Cohen and Herbert Boyd accomplished this in 1972. ये हो गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे नेटिव प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड में यहाँ पे ORI प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड वेक्टर है, ओके। फिर यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट जीन, ये ड्रग रेजिस्टेंस जीन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले कट किया गया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देन फिर लाइगेज डाल के जोड़ दिया गया और अब ये बन चुका है रिकॉम्बिनेंट, देन फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इकोलाई के अंदर इसे डाला गया, तो अब ये इकोलाई कैसा हो चुका है, ड्रग रेजिस्टेंस इकोलाई, बिल्कुल ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई हो चुका है ये। You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism. First, identification of DNA with desired gene. Identification of DNA with desirable genes. Identification of DNA with desirable gene. Introduction of the identical DNA into the host. Introduction of the identified DNA introduction of the identified DNA into the host. Introduction of the identified DNA into the host, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ, हाँ वो होस्ट में डाल दिए, वेक्टर में लाइगेशन करने के बाद होस्ट में डाल दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। Maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA into its progeny. ओके अब देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर जिसे कह रहे हैं, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइगेजेज मॉलिक्यूलर ग्लू, T4 लाइगेज, isolate from T4 bacteriophage, join phosphodiester bond, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू का जो काम कर रहा, T4 लाइगेज आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज, जॉइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके। फिर वेक्टर जो कि मॉलिक्यूलर व्हीकल जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके।
दो डीएनए जोड़ने पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है बिल्कुल, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जब जोड़ने पे तो वहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सीजर ये कौन सा कट करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करता है, ठीक है, पी और एस के बीच का। हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम were first postulated by W. Erber in 1960s. Restriction enzymes were first postulated by W. Erber in 1960s. Restriction enzyme was first postulated by restriction enzyme were first postulated by W. Erber in 1960s. In 1960s, the first true restriction endonucleases was isolated in 1970 by Nathan and Hamilton Smith. Restriction enzyme was first postulated by W. Erber in 1960s. The first true restriction endonucleases was isolated in 1970s by Nathan and Hamilton Smith. The first true restriction endonuclease was isolated in 1970 by Nathan and Smith. Okay, फिर उसके बाद all three scientists were awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1978 for the discovery of endonucleases. तीनों साइंटिस्ट को अर्बर, नाथन एंड स्मिथ 1978 में नोबेल प्राइज मिला। 1970 में ये खोजे फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 1970 में हेल नाथन एंड स्मिथ, ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1978 में। ओके, ये बैक्टीरियोफाज है वायरस, वायरस, यहाँ से वायरस डीएनए आया, ठीक है, ये डीएनए है, ये बैक्टीरिया का, ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है ये। इसके ऊपर बैक्टीरियोफाज वायरस आया और वायरस अपना डीएनए इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इसमें जब अपना डीएनए डाला, ये डीएनए गया जो इसका मेन डीएनए था उसमें जाके ऐड हो गया और फिर ये वायरस यहाँ से बनाने लगा, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया में क्या देखा गया, जैसे ही अपना डीएनए डाला अंदर, कुछ जो चीज़ था जो इसे कट किया उसका नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि इसे कट कर दिया गया। बट जो इसका मेन डीएनए था उसे नहीं कट किया, जो इस बैक्टीरिया का डीएनए था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिथाइलेज एंजाइम एक्ट किया, वहाँ पे मिथाइलेशन हो गया, डेट्स वाई उसे कट नहीं हुआ, सिर्फ वायरल डीएनए कट किया गया, ठीक है। इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli. In the year 1963 में, in the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA methylase, while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ये अपना वायरल डीएनए अंदर डाला था, तो यहाँ से जो कट किया उसका नाम रखाया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट द वायरल डीएनए, ठीक है। और जो इसका जीनोमिक डीएनए था वहाँ पे मिथाइलेज एंजाइम एक्ट किया और यहाँ पे मिथाइलेशन ऑफ डीएनए हो गया, ठीक है। ये कब हुआ? 1963 में ये हुआ। Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nuclease. These are of two kinds, exonuclease और endonuclease. Exonuclease जो कि outside cut करता है और endonuclease cut the DNA inside at a specific site. Okay.
एंडोन्यूक्लियस दो तरह का है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ चाहिए और एटीपी चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक है, एटीपी यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द रिस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन साइट को, बट और इसका स्ट्रक्चर तो ये 3 सब यूनिट में बटा हुआ है। पहला हो गया रिकॉग्नाइजेशन मिथाइलेशन, कट द डीएनए रैंडमली। रिकॉग्नाइजेशन मिथाइलेशन कट द डीएनए रैंडमली, बट डीएनए को रैंडमली कट करता है। रिकॉग्नाइजेशन भी क्या, मिथाइलेशन भी क्या, बट कट द डीएनए रैंडमली, ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो हम लोग यूज़ कौन सा करते हैं, टाइप 2 यूज़ करते हैं। यहाँ पे Mg2+ चाहिए, यस, ये रिकॉग्नाइज्ड करता, यूज्ड इन RDT, बिल्कुल यही यूज़ करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, टाइप 2 वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे बस 2 सब यूनिट है, एक हो गया पहला recognition of restriction site, then cut the DNA at a specific restriction sites। ये हो गया पहला रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। फिर उसके बाद कट द डीएनए एट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, डिस्कवरी the first restriction endonuclease Hind2 type 2। ये दो सब यूनिट था, एक तो पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। सेकंड फिर ये क्या काम करता, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, ओके। अब देखते हैं डिस्कवरी। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस Hind2 type 2 whose functioning depended on the specific DNA nucleotide sequence was isolated Hamilton Smith and characterized 5 years later. It was found that Hind2 always cut DNA molecule at a particular point of recognizing a specific sequence of 6 base pair. This base sequence is known as recognition sequence for Hind2. The first restriction endonuclease Hind2 type 2, ठीक है, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated Hamilton Smith and characterized 5 years later. It was found that Hind2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequence is known as recognition sequence for Hind2. बिल्कुल, द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नॉन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ Hind2। क्या है इसका सीक्वेंस, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। GTTAAC Hind2, हाँ, और इकोलाई का है GATTC, और इसका क्या है GTTAAC 6 बेस पेयर का है, ठीक है, 6 बेस पेयर का है। It was found that Hind2 cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequence is known as recognition sequence for Hind2 GTTAAC, ठीक है। Besides Hind2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strain of bacteria, each of which recognized different recognition sequence. Besides Hind2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strain of bacteria, 900 restriction endonuclease restriction enzyme, ठीक है, 900 restriction enzyme, और फिर 230 strain of bacteria, each of which recognize different recognition sequence, okay। अब देखते हैं palindromic sequence। each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। बिल्कुल,
और यहाँ पे each restriction endonuclease recognize a specific palindromic sequence in DNA. ये palindromic मतलब क्या होता है, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ई को R1 का देखते हैं तो GAATTC और हिंद टू का था GTTAC, हाँ वहाँ था GTTAC और यहाँ इको R1 का है GAATTC, ओके। और यहाँ पे स्टिकी एंड प्रेजेंट है, जी और ए के बीच में कट लगाया जा रहा, ठीक है। यहाँ पे स्टिकी एंड प्रेजेंट है, वहाँ पे था ब्लंट, यहाँ पे स्टिकी एंड प्रेजेंट है, जी और ए के बीच में कट लगाया जा रहा, ठीक है। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इको R1, ई से हो गया एस्चेरिचिया, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम represent genus, first letter of the name represent genus Escherichia, ठीक है। फिर second 2 letter species of the prokaryotic cell from which they were isolated, example eco R1 comes from Escherichia coli RY13। सेकेंड 2 लेटर स्पीसीज, गुड सूप था तो पहले हो गया जीनस फिर स्पीसीज, तो पहला ई हो गया जीनस फिर सी ओ हो गया स्पीसीज। सेकेंड 2 लेटर स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वेयर आइसोलेटेड, एग्जाम्पल इको R1 कम्स फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। आर से हो गया RY13, इको R1 द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, the letter R is derived from the name of strain, R हो गया नेम ऑफ स्ट्रेन, ओके। रोमन नंबर में जो लिखा था वो है ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रोमन नंबर order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria. Roman number order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंद 2 हो गया तो ऐसे हो गया हीमोफाइलस, ये जीनस है, ठीक है। आईएन से इन्फ्लुएंजा, ये स्पीसीज है, जीनस स्पीसीज। फिर ये डी हो गया स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फिर ये 2 हो गया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ओके। वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इच रिस्ट्रिक्शन endonuclease functioning by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. बिल्कुल स्टिकी एंड ये प्रेजेंट होता मतलब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इको R1 में जैसे है। फिर ब्लंट एंड ये हो गया हिंद 2 में, इको RV में, यस। तो हिंद 2 हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा GTTAAC, हिंद 2 में है GTTAAC और इको R1 में है GAATTC और G और A के बीच में कट लगा रहा और वहाँ पे T और A के बीच में, ठीक है, हिंद 2 में। बाम H1 बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशन GGATCC, ओके। लाइगेज का काम क्या है, ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विथ रिगार्डेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल। They are useful in genetic engineering. हाँ, sticky ends can be joined by using DNA ligase. लेकिन हमसे पूछा क्या था, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है काटने का और यहाँ पे ये लाइगेज के बारे में बता रहा नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट
describe the characteristic of the enzyme restriction endonuclease. Following following statement describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है. द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए. सही है. द एंजाइम्स बाइंड द एंजाइम बाइंड्स डीएनए at a specific site and cut only one strand. गलत गलत गलत, दोनों काटता है. The enzyme cuts the sugar phosphate backbone at a specific site on each strand. बिल्कुल सही है. The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. सही है. देखते हैं bacteria possessing restriction endonuclease remain. Bacteria possessing restriction endonuclease remain resistant to bacteriophage. Bacteria possessing restriction endonuclease remain resistance to bacteriophage. बिल्कुल. Bacteria possesses restriction enzyme remain resistant to bacteriophage. हाँ. The recombinant DNA technology, a plasmid vector is cleaved by the recombinant DNA technology. In recombinant DNA technology, a plasmid vector is cleaved by modified DNA ligase nahi, heat alkaline solution nahi, the same enzyme that cleave donor DNA. बिल्कुल different enzyme नहीं, same. अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर. यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. बिल्कुल. Bacteriophage, because of their high number within the bacteria cell, some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, whereas the other may have 15 to 100 copies per cell due to the strong ORI. If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of the foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant. Okay. Other vectors, why we use them? Inside plasmid vector DNA, we can add up to 8 kb of gene of interest. If gene of interest is more than 8 kb, then we have to use other vector. Other vector क्या है? जैसे हो गया bacteriophage, lambdaphage. DNA is used as a vector, and up to 23 kb of gene of interest can be added in bacteriophage DNA. Okay, second, gene of interest up to 40 kb, cosmid vector. Gene of interest up to 50 kb, BAC, bacterial artificial chromosome. Gene of interest up to 1000 kb, YAC, ist artificial chromosome. Okay, अब देखते हैं essential features of a vector are first, origin of replication, ORI. Essential features of a vector are first हो गया ORI, origin of replication. Replication start from ORI sequence. ORI क्या selectable marker. In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which help in identifying and eliminating. सबसे पहला क्या था? ORI, origin of replication. Replication starts from ORI sequence. Okay. Second, selectable marker. In addition to ORI, the vector requires a selectable marker
which helps in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. Second क्या है selectable marker. Second है selectable marker. In addition to ORI, the vector require a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. Example: antibiotic resistance gene. Second, LAC-Z gene for beta galactosidase enzyme. Second क्या है? LAC-Z gene for beta galactosidase enzyme produce color in the presence of a chromogenic substrate. बिल्कुल. The gene encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable marker for E. coli. The gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable marker for E. coli. The gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable marker for E. coli. Okay. अब देखते हैं थर्ड क्या है? क्लोनिंग साइट. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस restriction site 4 to 8 nucleotide present within selectable marker. Cloning site palindromic sequence restriction site 4 to 8 nucleotide present within selectable marker. Cloning site palindromic sequence cloning site जो है ये palindromic sequence restriction site 4 to 8 nucleotide, ठीक है, present within selectable marker में ये present होना चाहिए. क्लोनिंग साइट, हाँ, जो क्लोनिंग साइट ये है क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये. रिस्ट्रिक्शन साइट 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड का प्रेजेंट विदिन सेलेक्टेबल मार्कर में ये प्रेजेंट होना चाहिए. बिल्कुल. ये प्लाज्मिड हो गया, ठीक है. यहाँ पे एक ORI प्रेजेंट है और ये है ड्रग रेजिस्टेंस जीन. यस, बिल्कुल यही है सेलेक्टेबल मार्कर और इसमें ये प्रेजेंट है क्लोनिंग साइट. तो restriction endonuclease must have only one cloning site in plasmid. बस एक ही होना चाहिए. must have only one recognition site in plasmid. हाँ, वरना पता चले एक से ज़्यादा काट दो तो ये तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो इसलिए एक ही होना चाहिए. restriction endonuclease must have only one restriction site in plasmid. ठीक है. अब देखते हैं वेक्टर PBR 322. वेक्टर PBR 322. ये यहाँ पे सबसे पहले ORI होना चाहिए था. हाँ, यहाँ पे ORI प्रेजेंट है. यहाँ पे ROP प्रेजेंट है, जहाँ पे PVU2 प्रेजेंट है. ये रिस्ट्रिक्शन साइट है. बिल्कुल. PVU2 ये ROP में प्रेजेंट है. ROP कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid. ROP codes for the protein involved in the replication of the plasmid. ROP codes for the protein involved in the replication of the plasmid. ROP codes for the protein involved. ROP codes
ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid. ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid. In the replication of plasmid. Okay. ये PBR 322 P से हो गया plasmid. VR ये क्या बॉलीवर रॉड्रिक्विज, ये साइंटिस्ट का नेम है. हाँ, बॉलीवर रॉड्रिक्विज BR. ठीक है. P से हो गया plasmid. और यहाँ पे ये ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. ठीक है. ये एम्फिसिलिन और इधर क्या है टेट्रासाइक्लिन. एम्फिसिलिन पे यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन साइट है. एक हो गया PVU1 और दूसरा PST1 और PVU1. ये हो गया एम्फिसिलिन, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन, इधर हो गया BAM-H1 और SAL1. टेट्रासाइक्लिन पे दो है, BAM-H1 और SAL1. ठीक है. और फिर यहाँ पे ऊपर में EcoR1, CLAV1, HIND3. ठीक है. तो यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर तो दो है. सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे दो हो गया, एक एम्फिसिलिन और दूसरा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन. एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. ठीक है. एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे यहाँ पे दो है रिस्ट्रिक्शन साइट. एक हो गया PVU1 और PST1. ये दोनों है रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे. ओके. टेट्रासाइक्लिन पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे है, दो है, BAM-H1 SAL1. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन BAM-H1 और SAL1. ठीक है. तो दो यहाँ पे हो गया. और फिर ऊपर में जहाँ पे कोई सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है बट वहाँ पे तीन प्रेजेंट है रिस्ट्रिक्शन साइट, EcoR1, CLAV1 और HIND3. ठीक है. तो यहाँ पे क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट टोटल 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है. बट विद इन सेलेक्टेबल मार्कर दो है टेट्रासाइक्लिन में और दो है एम्फिसिलिन में. ओके. अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट. Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistance gene or like Z gene. Insertional inactivation. Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistance gene. Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistance gene or like Z gene. इसलिए इसे कहते हैं insertional inactivation. Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistance gene or like Z gene. Insertional inactivation. Based on inactivation of antibiotic resistance gene based on inactivation of antibiotic resistance gene based on inactivation of antibiotic resistance gene or like Z gene. Insertional inactivation. Based on inactivation of antibiotic resistance gene or like Z gene से कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ओके. ये हो गया PBR 322. यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और BAM-H1 प्रेजेंट है और ये इधर हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट. BAM-H1 डाले, यहाँ पे कट लगा, इसको भी काट के इसमें डाल दिए. लाइगेज डाले, ये यहाँ चिपक गया, तो यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन था और यहाँ पे ये अब जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इंसर्ट हो चुका है और ये प्लाज्मिड था और अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया. ओके. ये रिकॉम्बिनेंट PBR 322 ये एम्फिसिलिन हो गया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, ये प्लाज्मिड है. यस. जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले, BAM-H1 प्लस T4 लाइगेज भी डाल दिए, ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू. ओके. ये इसमें गया, लाइगेशन हुआ, कट लगा पहले, किसी में लाइगेशन हुआ, किसी में
मतलब किसी में ये इंसर्शन हुआ, किसी में नहीं भी हुआ, तो लाइगेज ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब कुछ यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट और कुछ रिकॉम्बिनेंट बना। फिर इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन इंटर इन इकोलाई, इकोलाई में इंटर किया गया रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। हाँ, क्योंकि अभी तो हमें पता है नहीं कौन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ 3 तरह का बना, एक जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, सेकेंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और फिर तीसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। जिसमें गया उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और जिसमें नहीं गया उसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ओके। फिर इसमें रेप्लिका किए, नंबर ग्रो की, इन सबका ग्रो किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद विदाउट एंटीबायोटिक अभी ग्रो किया गया, हाँ। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक डाला गया, तो फिर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक एक में डाला गया और दूसरे प्लेट में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला गया, ओके। तो फिर जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें इकोलाई गया ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेंट में जो रिकॉम्बिनेंट है, वहाँ पे तो वो जैसे ही इंटर किया तो वो इनएक्टिवेशन हो गया, तो वो उसके लिए रेजिस्टेंट है नहीं, तो वो तो वहाँ पे मर जाएगा। जैसे यहाँ पे एंटीबायोटिक में एम्फिसिलिन में इंसर्ट किए थे, तो एम्फिसिलिन के तो ये इनएक्टिव हो गया, तो एम्फिसिलिन के प्रेजेंस में ये किस में किए थे, अच्छा टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किए थे, हाँ ठीक है। तो फिर टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेजिस्टेंस अब खो देगा, तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन में मर गया, तो फिर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ये मर गया, तो वहाँ वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, हाँ। और जो दोनों में ग्रो कर रहा, मतलब वहाँ पे इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो इंसर्ट किया ही नहीं है, तो इसलिए वो दोनों में ग्रो कर पा रहा। तो ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें कुछ आया ही नहीं था, तो ये दोनों जगह मर गया, ठीक है। ये था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। फिर सेकेंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि दोनों में ग्रो कर रहा। फिर ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ, जो कि जहाँ इनएक्टिवेशन हो गया वहाँ ग्रो नहीं किया, वहाँ पे ग्रो किया। अब क्वेश्चन है इन इकोलाई वेक्टर PBR 322, which of the given option correctly identifies its certain component? In equali vector PBR 322, which of the given option correctly identifies its certain component? Which of the given option correctly identifies its certain component? Hind 3 eco R1 selectable marker, Hind 3 eco R1 selectable marker, ये दोनों सेलेक्टिबल मार्कर नहीं, गलत है, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट है। टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन, ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हाँ बिल्कुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, हाँ भाई सेलेक्टिबल मार्कर है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जीन ऑफ इंटरेस्ट was cloned at site SOL1, साल किस में है, टेट्रासाइक्लिन में है, ठीक है। यहाँ पे क्लोन किया गया, मतलब ये इसके लिए इनएक्टिवेट हो गया टेट्रासाइक्लिन के लिए, ओके। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाज एक्सिबिट ससेप्टिबिलिटी टू, किसके प्रति ससेप्टिबिलिटी दिखाएगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए तो इनएक्टिव हो चुका है, एम्फिसिलिन ओनली, ओके। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वेक्टर, PBR 322 हाँ वेक्टर है, TI प्लाज्मिड वेक्टर है, बैक्टीरियोफाज ये तो वायरस है, नॉट अ वेक्टर, जेनेटिक मटेरियल एक्ट एज अ वेक्टर, ओके। फोर्थ है PUC, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन, विच इज ऑड वन आउट, PBR 322 हाँ ये DNA है, वेक्टर है। कॉस्मिड DNA वेक्टर है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। जेनेटिक मटेरियल यूज एज अ वेक्टर, ओके। अब देखते हैं सेलेक्टेबल मार्कर लेक्जेडजीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, produce color in the presence of a chromogenic substrate.
selectable marker lag Z gene for beta galactosidase enzyme. Lag Z gene for beta galactosidase enzyme produce color in the presence of a chromogenic substrate. Lag Z gene for beta galactosidase enzyme. Lag Z gene for beta galactosidase enzyme produce color in the presence of lexatin for beta galactosidase enzyme produce color in the presence of a chromogenic substrate. जैसे यहाँ पे लैकोपेरॉन है, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड करता, हाँ. फिर उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर नहीं इसके आगे भी था, हाँ पहले इसके आगे भी होगा और ऑपेरॉन रेगुलेटर जो था, हाँ पर रेगुलेटरी जीन वहाँ से जो बनता है प्रोडक्ट, मतलब रेगुलेटरी जीन जो प्रोडक्ट बनाया वो आके यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड करेगा, हाँ. तो इसे बाइंड करने के बाद ये आगे नहीं चलता, मतलब जीन स्ट्रक्चरल जीन नहीं बनता, तो इसलिए इसे कहते हैं रिप्रेसर, ये इनहिबिटर है. तो ये रिप्रेसर है, बट जब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड कर लेता, तो अब वहाँ पे कुछ भी बाइंड नहीं कर पाया, रिप्रेसर वहाँ बाइंड नहीं कर पाया, वहाँ पे. तो फिर रिप्रेसर बाइंड कर जाता था तो स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो जाता था. अब तो लैक्टोज आके उसको घेर लिया तो रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाया, तो अब स्ट्रक्चरल जीन ऑन है, स्ट्रक्चरल जीन अब ऑन है. तो यहाँ पे लैक जेड जो है, लैक जेड है, इससे ये बना mRNA. यहाँ पे लैक जेड है, इससे बना mRNA. ये क्या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये लैक्टोज से क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में बनाया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बना, ये क्या क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. तो यहाँ पे लैक्जेड जीन और ठीक है लैक्जेड जीन, ये mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, हाँ लैक्जेड जीन बना था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये लैक्टोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, हाँ. क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ये ब्लू कलर, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर का आया, ब्लू कलर शो किया. क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर दिया. प्लाज्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड, हाँ ठीक है ये तो हो गया, हाँ ब्लू कलर दिया क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में, ठीक है. अब देखते हैं PUC8 प्लाज्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, PUC8. ओके ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है. PUC8 यहाँ पे ORI प्रेजेंट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इधर हो गया एम्फिसलिन, इधर हो गया एम्फिसलिन, ठीक है प्रेजेंट है. और इधर यहाँ पे लैक जेड जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे BAM-H1, HIND3, PST1, ECO-R1, SAL1, SMA1, ये सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है. लर्न नहीं करना, लेकिन टोटल 6 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है यहाँ पे. ओके ये सेलेक्टेबल मार्कर 2 हो गया, एक इधर एम्फिसलिन और इधर लैक्जेड जीन, ये दोनों क्या सेलेक्टेबल मार्कर. ओके DNA डाला गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला गया, प्लस T4 लाइगेज डाला गया, ठीक है. तो किसी में जाके इंसर्ट हुआ तो वो रिकॉम्बिनेशन हुआ, और जहाँ पे नहीं हुआ तो उसे कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेशन. ओके फिर ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, ये इकोलाई, फिर यहाँ पे 3 केस आया, एक में गया, एक में नहीं गया और एक में रिकॉम्बिनेंट गया. तीनों केस है, एक हो गया रिकॉम्बिनेंट, एक हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पहला, तो ठीक है. फिर उसके बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट. ओके इन तीनों को ग्रो कराया गया विदाउट एंटीबायोटिक, ठीक है. तीनों को ग्रो कराया गया, फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब एम्फिसलिन, ये इंसर्शन कहाँ पे हुआ है, लैक्जेड जीन में इंसर्शन हुआ है, रेड कलर, हाँ ठीक है लैक्जेड जीन में इंसर्शन हुआ है. तो फिर पहले ये कलर जहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ था, मतलब जब इंसर्शन नहीं हुआ होगा तो ये ब्लू कलर देगा, बट अब इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया तो अब तो ब्लू कलर नहीं देगा, मतलब कलरलेस, मतलब वाइट कलर देगा. देखते हैं. यहाँ पे ग्रो करवाए, एक तो मर गया, तो जो मर गया वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है. और जो अभी भी ब्लू कलर दे रहा मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हाँ क्योंकि इनएक्टिवेशन नहीं हुआ उसमें. और जो कलरलेस है वाइट कलर का है, रिकॉम्बिनेंट जहाँ पे वाइट कलर का है. ओके जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वाइट कलर का है वो तो क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट जो ब्लू कलर दे रहा है, हाँ. और जो रिकॉम्बिनेंट है वो दे रहा वाइट कलर, ठीक है. रिकॉम्बिनेंट वाइट कलर, वो दे रहा रिकॉम्बिनेंट वाइट कलर दे रहा.
जो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि वहाँ पे इनएक्टिवेशन हो गया तो वो वाइट कलर दे रहा। देखते हैं नॉर्मल इको, क्वेश्चन है नॉर्मल इकोलाई सेल कैरी रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, नन ऑफ दिस, किसी का भी नहीं। ओके देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट में हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, a pathogen of several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor plant। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में गया यहाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ये है क्या, वैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लांट के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू a pathogen of several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen। Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal cell into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen to transform normal cell into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen and direct this tumor cells to produce the chemical required by pathogen and direct this tumor cells to produce the chemical ठीक है cell tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। okay, the tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plant, मतलब dicot plant, not in animal, ये सिर्फ plant के लिए। The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to a plant but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plant, dicot plant only, does not use in cereal plants such as corn and rice। ग्रॉन मतलब कैंसर, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस इन एनिमल्स have the ability to transform normal cell into cancerous cell. Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cells. So once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant और एनिमल। अच्छा है, ये किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। So once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, into a suitable vector, उसके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, into a suitable vector it is transferred into bacterial, plant or animal host where it multiplies। okay, note ये है सटल वेक्टर ORI ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और ORI ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दोनों का परसेंटेज में, ठीक है। रेप्लिकेट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल YEP ist episomal plasmid and modified TI plasmid। okay, the ability to transform normal cell into cancerous cell is found in TI plasmid, हाँ बिल्कुल, रेट्रोवायरस हाँ बिल्कुल, और प्लाज्मिड नहीं।
अब देखते हैं competent host for transformation with recombinant DNA for transformation with recombinant DNA first. Since DNA is a hydro competent host ठीक है for transformation with competent DNA. Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membranes. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation, such as calcium. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation such as calcium. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice This enables the bacteria to take up the recombinant DNA, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock, ठीक है, and then putting back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. Okay, ये क्या recombinant DNA? ये E. coli है, प्रोकैरियोटिक बिल्कुल, और ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस हीट शॉक फॉर बैक्टीरियल सेल. तो E. coli क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, इसी पे ये होता है. कैल्शियम क्लोराइड, इसके ऊपर कैल्शियम का आयन है, ठीक है, हीट शॉक की है 42 डिग्री सेल्सियस फिर आइस पे, तो ये इसके अंदर जा पाया पोर के थ्रू. ओके, अब देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन. इन अ मेथड नॉन एज माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. माइक्रो इंजेक्शन से इधर तो ये एनिमल सेल के लिए होता है, ठीक है. इन अ मेथड नॉन एज माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. ओके, बायोलिस्टिक और जीन गन से अगर एनिमल सेल को एनिमल तो मर ही जाएगा गन से, इसलिए ये प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. बायोलिस्टिक और जीन गन. In another method suitable for plants cells are bombarded with high velocity micro particles of gold or tungsten coated with recombinant DNA in a method known as ballistic or gene gun. Okay, ये यहाँ पे DNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA, हाँ, गोल्ड और टंगस्टन का इसके ऊपर कोटिंग किया गया. हाँ, ये V वेलोसिटी की स्पीड से गया प्लांट सेल में और चला गया रिकॉम्बिनेंट DNA. ओके, अब देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स. फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ DNA, फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases. Third, isolation of a desired DNA fragment by gel electrophoresis. Fourth, amplification of DNA fragment by PCR. Ligation of the DNA fragment into a vector. Amplification हो गया, amplification of a DNA fragment by PCR. Amplification of DNA fragment by PCR. एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद लाइगेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर. फिर उसके बाद ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट. फिर उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके, अब देखते हैं सबसे पहला हो गया
सबसे पहला होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो ये स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल। बैक्टीरिया और एनिमल सेल के लिए सेल ब्रेक करने के लिए हम लोग लाइसोजाइम डालते हैं, बैक्टीरिया और एनिमल सेल का सेल ब्रेक करने के लिए, ठीक है। प्लांट सेल का ब्रेक करना है तो फिर सेल्यूलेज, और अगर फंगल सेल का ब्रेक करना है तो काइटिनेज, ओके। और बैक्टीरिया और एनिमल सेल के लिए लाइसोजाइम, ओके। स्टेप थर्ड, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, आरएनए और प्रोटीन तो चाहिए नहीं, तो फिर इसमें प्रोटीएज डालें और राइबोन्यूक्लियस डालें। तो इसे ये दोनों डाइजेस्ट हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ डीएनए बचा है। देन फिर सेंट्रीफ्यूज़ किए तो ये डीएनए मिल गया हमें, और इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल दिए, तो फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए अकर। देन फिर स्पूलिंग के थ्रू, स्टिल यूजिंग स्टिल रॉड एंड डीएनए फाइबर can be isolated for demonstration, okay. Second आता fragmentation of DNA by restriction endonuclease. Fragmentation of DNA by restriction endonuclease इसमें डालें, ये DNA का फ्रेगमेंट हो चुका है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, ओके। Separation and isolation of a desired DNA fragment by gel electrophoresis. Separation and isolation of a desired DNA fragment by gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards anode. Third हो गया separation and isolation of desired DNA fragment by gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. Since DNA fragments are negatively charged, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweed, red algae seaweed. ठीक है, क्या है मैट्रिक्स, एगेरोस, ओके। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सिविंग effect provided by the agarose gel. Hence the smaller the fragment size, the further it move. The further it move. Okay, तो ये हो गया मार्कर, यहाँ पे मार्कर डाल देते हैं, ठीक है। इससे पता चल जाता है ये कितने बेस पेयर का है। ये मार्कर, ये है इधर अनडाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है। तो सारा ये यहीं पे रह गया क्योंकि यहाँ पे लार्ज फ्रैगमेंट था, ओके। फिर सैंपल डालें तो जो स्मॉल फ्रैगमेंट वाला है वो नीचे तक आ गया, हाँ। और ये नीचे पॉजिटिव लगा है एनोड टर्मिनल और ऊपर नेगेटिव है, तो ये डीएनए नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट होते जा, जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट है वो उतना आगे आ जाएगा, यस। तो फिर द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट और रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सिविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगेरोस जेल। हेंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे यूवी लाइट डालते हैं और इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये ऑरेंज कलर का देता। और हाँ, इथीडियम ब्रोमाइड इसमें पहले डालते हैं, देन फिर यूवी लाइट डालें तो ये ऑरेंज कलर का दिखा हमें, इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, ओके। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA. The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. You can see bright orange color. The separated DNA fragment can be visualized only after staining. The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with the compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation, okay. You can see bright orange color band of DNA in the ethidium bromide stained gel exposed to UV light. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. The separated band of DNA
The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. The separated DNA band, the separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece This step is known as illusion. ठीक है. अब देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर और थर्मोसाइक्लर. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर और थर्मोसाइक्लर. एम्प्लीफिकेशन, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. हाँ बिल्कुल, इससे तो इसे कहा जाता है थर्मोसाइक्लर. पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग क्या क्या चाहिए सबसे पहले. टू सेट ऑफ प्राइमर और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. टू सेट ऑफ प्राइमर ये क्या है. स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA. Two set of primer small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. Okay. Second, thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, so it is called taq polymerase. So thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, so it is called taq polymerase. DNTPs plus Mg ion. Thermostable DNA polymerase isolate from a bacterium Thermus aquaticus, so it is called taq polymerase. हाँ बिल्कुल, पहले तो हो गया. टू सेट ऑफ प्राइमर चाहिए. स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA. ठीक है. और ये जो प्राइमर होता है यहाँ पे इन नॉर्मल कंडीशन पीसीआर RNA primer attached DNA. ठीक है. बट इन पीसीआर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड DNA primer attach. तो यहाँ पे जो ये प्राइमर है ये सिंगल स्ट्रैंड DNA ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का बना है. प्राइमर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड DNA ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का बना है. ठीक है. तो टू सेट ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA. और ये क्या है. प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA oligonucleotide. ठीक है. सेकेंड क्या चाहिए हमें. thermostable DNA polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus, so it is called taq polymerase. हाँ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाई टेम्परेचर पर भी रहना चाहिए, तो फिर इसलिए हम लोग लिए thermostable DNA polymerase. ओके. taq polymerase. थर्ड, DNTPs plus Mg ion. DNTPs plus magnesium ion. ठीक है. फोर्थ DNA सैंपल चाहिए हमें. ये हो गया DNA. ठीक है. ये DNA सैंपल है. हाँ पहले डीनेचरिंग यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचरिंग होता. ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डीनेचरिंग हुआ. ठीक है. 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचरिंग हुआ, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड देन यहाँ पे 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे एनलिंग कहते हैं इसे. 50 to 60 डिग्री सेल्सियस एनलिंग कहते हैं. अटैच डीएनए प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे ये जिधर 5' था तो वहाँ पे 3' जो इधर यहाँ पे 3' से 5' है तो यहाँ पे 5' से 3' पे OH है. इधर ये हो गया और इधर यहाँ पे 3' था तो यहाँ पे 5' से 3' तक ये OH ये यहाँ पे दोनों साइड में आ गया. डीनेचरिंग हुआ, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. 95 डिग्री सेल्सियस पे फिर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे एनलिंग हो रहा. अटैच प्राइमर डीएनए प्राइमर आके अटैच पर. ठीक है. फिर उसके बाद एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन हो रहा. ओके. तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आता, टैक पॉलीमरेज आता. देन वो क्या करता, इन्हांस एक्सटेंशन, फिर ये एक्सटेंशन करवाता. तो हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें डाले हैं. डीएनए सैंपल डाले, प्राइमर डाले, न्यूक्लियोटाइड डाले. हाँ बिल्कुल.
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाले थे और फिर टैग पॉलीमरेज और डीएनए सैंपल में, हाँ वो तो पहले ही बोल दिए, डीएनए सैंपल बोल दिए ये, हाँ ठीक है सब कुछ हो गया. After 30 cycle amplified 1 billion times, 1 billion times. आफ्टर 30 साइकिल, ये एनसीईआरटी में गिवन है. आफ्टर 30 साइकिल, 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स. ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर n, n हो गया नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, n हो गया नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, 2 की पावर n, n हो गया नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल. ओके, 30 है तो फिर यहाँ पे 1 बिलियन हो जाता. ओके, अब देखते हैं फिफ्थ. इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म. इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into the host cell or organism. There are several methods of introducing the ligated DNA into a recipient cell. There are several methods to introducing the ligated DNA. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell. So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cell become transformed into ampicillin resistance gene. हाँ बिल्कुल. So, if recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistance gene. हाँ, क्योंकि इसमें कौन सा ये जीन डाले हैं एम्फिसिलिन, तो अब ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस सेल बन चुका है. बिल्कुल. इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, untransformed recipient cell will die. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called a selective marker. Okay. हाँ बिल्कुल. 6 क्या है? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बायोरिएक्टर. अब पढ़ते हैं. obtaining the foreign gene product recombinant protein. Obtaining the foreign gene product recombinant protein. The bioreactor, a small volume culture, cannot yield appreciable quantities of product. To produce in large quantities, the development of bioreactors where large volume 100 to 1000 liter of culture can be processed was required. ठीक है. A bioreactor provides the optimum condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. Okay. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Okay. अब देखते हैं, दो तरह का होता है ये. एक हो गया बैच फर्मेंटर क्लोज्ड सिस्टम और दूसरा कंटिन्यूस कल्चर ओपन सिस्टम और फेड बैच कल्चर. सबसे पहले है बैच फर्मेंटर क्लोज्ड सिस्टम. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सक्रीटरी वगैरह सब कुछ इसी में है. तो यहाँ पे सबसे पहले जब डालते हैं सब कुछ तो ये लैग हो गया, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, फिर जब सब कुछ बन चुका है तो ये क्लोज्ड है, तो उसके बाद फिर डेड फेज आ जाता. तो ये एस शेप कर्व शो करता, एस शेप कर्व फॉर्म. पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी एंड देन फिर डेड फेज. ओके. अब सेकेंड है कॉन्टिन्यूस कल्चर ओपन सिस्टम और फीड बैच कल्चर भी इसे कहते हैं. यहाँ पे इधर से न्यूट्रिएंट डालते जा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बनते जा रहा है और हम लोग एक दूसरे साइड से इस प्रोडक्ट को आइसोलेट करते जा रहे हैं. तो यहाँ पे ये लॉग
फेज रहता है, ठीक है। ये जे शेप कर्व फॉर्म हुआ, यहाँ पे जे शेप कर्व फॉर्म हुआ। तो बैच फर्मेंटर और क्लोज सिस्टम जो था, पहले वहाँ पे लैग था, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी एंड देन फिर डेड। तो ये था बैच फर्मेंटर में। फिर बाद में कॉन्टिन्यूस कल्चर, ओपन सिस्टम और फिर बैच कल्चर। यहाँ पे ये लॉग बन जाता, जे शेप कर्व फॉर्म, जे शेप कर्व फॉर्म। अब फिर लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, द प्रोसेसेस include separation and purification of product. The process include separation and purification of product. Downstream processing, the processes include downstream processing क्या है, processing downstream processing, the process include separation and purification of product. The process include separation and purification of product. The process include separation and purification of product. Okay, इसे कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।